ایک مقام ہوتا ہے جس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محبت میں اپنے قلب میں لیے ہوئے ہوں نا، اب میری ڈکشنری میں لفظ ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو آپ سے عقیدت کے اظہار کے لیے، آپ سے محبت کے اظہار کے لیے میں پیش کر سکوں، جو شایان شان ہو آپ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں موجود ایک نعت آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو نعت ہے، اس کا ردیف ہے قلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے، اس کا براہ راست ایک اثر ہمارے قلب کے اوپر ہوتا ہے۔ میں بارہا اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ قلب ایک عضو روحانی ہے جو انسان کے جسم میں دل کے مقام کے پاس پایا جاتا ہے، اور یہ وہ قلب ہی ہے جس کے اندر اللہ سما جاتا ہے، یہ وہ قلب ہی ہے جس کے اندر نور اترتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ، ان کے ذکر کے ساتھ، ان پر درود بھیجنے کے ساتھ آپ کے قلب کا ایک بڑا واضح رشتہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کچھ اشعار ہیں، غزل کے فارمیٹ میں ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہے کہ آپ کے نام سے دمکتا قلب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نام سے دمکتا قلب، آپ کے ذکر سے مہکتا قلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ان کے نام مبارک سے دل کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے نام سے دمکتا قلب، وہ جو دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوتی ہے قلب کے اندر۔ اور آپ کے ذکر سے مہکتا قلب، آپ کو اپنے قلب کے اندر دو چیزوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک روشنی اور ایک خوشبو۔ کسی چیز کی طہارت کی ضامن ہے یہ دونوں چیزیں، کہ وہ روشن ہو اور اس میں خوشبو ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قلب ایسا ہو کہ اس کے اندر روشنی بھی ہو اور اس کے اندر خوشبو بھی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہیں، تو یہ حقیقی محبت ایک کنجی بن جاتی ہے ان کے قلب کی ایسی صفائی کرنے کے لیے کہ اس کے بعد اللہ ان کے قلب کے اندر اتر آئے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں ایک ایسا دور گزارا ہے جس میں شاید میں اللہ سے بھی اس طرح محبت نہیں کرتا تھا جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا تھا، لیکن اس محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی محبت بھی پھر مجھے حاصل ہو گئی، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے قلب کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہے کہ آپ کے نام سے دمکتا قلب، آپ کے ذکر سے مہکتا قلب، اور ہے کہ نور و خوشبو کا امتزاج حسین، نور و خوشبو کا امتزاج حسین، چاندنی رات میں چھٹکتا قلب۔ یہ میں نے جیسے پچھلے شعر میں بھی ذکر کیا، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دمکتا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مہکتا بھی ہے، تو پھر نور اور خوشبو کا ایک بہت حسین امتزاج قائم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت ماحول آپ کے قلب کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر روشنی ہوتی ہے اور خوشبو ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک تمثیل ہے کہ چاندنی رات میں چھٹکتا قلب، کہ جیسے چاندنی رات میں آپ کو چاند چھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، نور چھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اپنے باطن میں قلب جو ہے اس طرح سے چھٹکتا نظر آتا ہے جیسے چاندنی رات کے اندر چاند ہو، ایسا نور اور خوشبو کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دینا چاہوں دنیاوی طور پر، تو اگر کسی شخص نے کبھی رات کی رانی کی بیل کے پاس رات کو بیٹھا ہو اور اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہو اور 14ویں کا چاند ہو اور اس کی روشنی بھی اس تک آ رہی ہو، تو جو ایک ماحول بنتا ہے آپ کے ظاہر میں، ظاہر ہے باطن ویسا نہیں ہو سکتا، ایک قریب ترین تمثیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں قلب کیسا محسوس کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے، ان کا نام لینے سے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی رات کی رانی کی بیل کے پاس بیٹھے ہوں اور چاندنی رات ہو، تو وہ جو ایک منظر کشی آپ کے ظاہر میں ہوتی ہے، ویسی ہی ایک منظر کشی آپ کے باطن میں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قلب کی نسبت بنتی ہے۔ اور ہے کہ اس میں احمد سے رفعتیں پاتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
इसमें अहमद से रिफ़्फ़तें पाता, नफ्स के बोझ को झटकता कल। हम क्या रिफ़्फ़त पाएँगे, हम बड़े गुनहगार इंसान हैं। हम मट्टी और नूर से मिलके बने हैं, लेकिन हमारा झुकाव मिट्टी की तरफ है। हम वो लोग हैं जो अपने अंदर की जिबिल्लतों के आगे झुके हुए होते हैं, और हम उस नूर से निस्बत नहीं पैदा कर सकते, जिस नूर से निस्बत पैदा करने के लिए हमें भेजा गया है। लेकिन जब प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आपका एक निस्बत बनती है, तो उससे आपका कल्ब भी रिफ़्फ़तें पाता है। वो कल्ब जो एक आम कल्ब है, वो आम कल्ब नहीं रह सकता, क्योंकि अब उसके अंदर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। तो इसमें अहमद से रिफ़्फ़तें पाता, प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उरूज पाता हुआ, रिफ़्फ़तें पाता हुआ, नफ्स के बोझ को झटकता कल्ब। वो जो नफ्स ने आपकी जिबिल्ली ख्वाहिशों के साथ आपको अपनी तरफ झुकाया होता है, नीचे की तरफ किया होता है, उड़ने नहीं दे रहा होता, नफ्स के उस बोझ को झटक देता है वो कल्ब। वो सारी नफ़्सानी ख्वाहिशात को, सब सारी सारी हवस को दुनिया की झटकता हुआ आगे बढ़ता है, और प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से निस्बत की वजह से वो रिफ़्फ़तें पाता है, उरूज की तरफ जाता है। आपका कल्ब तरक्की हासिल करता है जब आप प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो। हो गया आज आशनाए हरम, हो गया आज आशनाए हरम, वादियों में कहीं भटकता कल्ब। जैसे अरब की वादियों में कोई शख्स भटक रहा हो, और फिर वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच जाए, हरम से आशना हो जाए। वो वादियों में भटकता फिरने की जगह अल्लाह के घर से मुंसलिक हो जाए, उसका तवाफ़ करने लग जाए, उस घर से अपनी निस्बत जोड़ के बैठ जाए। उसी तरीके से कल्ब भी भटक जाते हैं, अपने अंदर के रेगिज़ारों के अंदर रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन जब वो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुंसलिक हो जाते हैं, तो ऐसे है कि जैसे वो दोबारा हरम से आशना हो गए। जैसे दोबारा उनकी निस्बत किसी तक़दीस के साथ हो गई हो, और वो सारा भटकने का अमल पीछे छोड़ते हुए दोबारा एक महवर के गिर्द घूमने लग जाते हैं। हरम से आशना हो जाते हैं, उस हरम के साथ उनकी ज़िंदगी का ताल्लुक जुड़ जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की वजह से। और है कि दस्ते रहमत से आबदार हुआ, दस्ते रहमत से आबदार हुआ, साल हा साल से भड़कता कल्ब। जब आपके दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते, तो ये दिल दुनिया के हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रतें, बहुत कुछ लेके, बहुत कुछ नेगेटिव लेकर इसको एक इसके अंदर एक आग लगी होती है, भड़क रहा होता है, नफ़्स की आग में दहक रहा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते रहमत अगर उस शख़्स के सर पर आ जाए, तो वो जैसे आबदार हो जाता है दोबारा। ऐसे है कि जैसे उसको दोबारा पानी मिल गया है, और वो भटकता हुआ कल्ब जो साल हर साल से भड़क रहा था, वो एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम उसके अंदर वो सुकून आ जाता है, एकदम उसके अंदर वो नरमी आ जाती है। एक तरह से वो भड़कते हुए कोयले की जगह एक ऐसी नमदार मट्टी बन जाता है, जिसके अंदर से आपकी शख्सियत की नुमो हो सकती है। और है कि खाक हूँ पर किसी से निस्बत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाक हूँ पर किसी से निस्बत है, देख लो नूर से चमकता कल्ब। कि वैसे तो मैं मिट्टी का पुतला हूँ, मरूँगा मिट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन मेरी एक ऐसी हस्ती से निस्बत है कि मिट्टी होते हुए भी मेरा ये कल्ब कैसे नूर से चमक रहा है तुम देख सकते हो। मैं इस मिट्टी का पैकर होते हुए भी नूर अपने अंदर भर सकता हूँ, और मेरा कल्ब नूर से मुनव्वर हो सकता है, इसलिए कि मेरी निस्बत उनसे है कि जिनसे निस्बत के बाद मिट्टी मिट्टी नहीं रहती। उस मिट्टी के अंदर नूर भर जाता है, नूर इलाही भर जाता है। और है कि ज़ात का इम्तिहान जज़्ब सलूक, ज़ात का इम्तिहान जज़्ब सलूक, मीनाए इश्क से छलकता कल्ब। ये जो आपकी ज़ात है ना, इसमें एक जज़्ब का इम्तिहान भी होता है। ज़र्फ़ है ना, बर्तन है आपका कल्ब, तो हर बर्तन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही ले सकता है। उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। आप किसी प्याले में पानी डालें, वो उतना ही पानी ले सकता है जितना पानी वो ले सकता है। वो प्याला अपने अंदर समंदर नहीं समा सकता, दरिया नहीं समा सकता, नदी भी नहीं समा सकता, उस प्याले का ज़र्फ़ ही बहुत कम है।
तो ज़ात का एक इम्तिहान जज़्ब होता है कि तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, किस हद तक तुम इस नूर को ले सकते हो। और ज़ात का एक इम्तिहान सलूक भी होता है कि वो किस तरह सलूक की मंज़िलें तय कर सकती है, आपकी ज़ात कैसे नई से नए मकाम पर जा सकती है, कैसे आप सालिहीन में शामिल हो सकते हैं, फिर कैसे आप सालिहीन से आगे बढ़ के शुहदा में, सिद्दीक़ीन में शामिल हो सकते हैं, कैसे आप सलूक की वो मंज़िलें तय कर सकते हैं कि आप मुक़र्रबीन में शामिल हो जाएँ, कैसे आप बाएँ हाथ वालों से दाएँ हाथ वालों में और दाएँ हाथ वालों से साबिकून में शामिल होते हैं। तो ये ज़ात का एक पूरा इम्तिहान है कि उसके अंदर जज़्ब कितना है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, नूर को अपने अंदर समा लेने की और उसके अंदर सलूक की मंज़िलें तय करने की कितनी सलाहियत है। मीना इश्क से छलकता कल्ब, तो वो जो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है ना, उससे ये मीना पूरा भर के छलकने लग जाता है, आपकी कैपेसिटी कम पड़ जाती है और आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं अपने अंदर कैपेसिटी बढ़ाऊँ, कैपेसिटी बढ़ाऊँ, कैपेसिटी बढ़ाऊँ। छलक-छलक के बाहर आ रहा होता है। एक वक़्त आता है कि वो मोहब्बत का वो मुकाम हो जाता है कि आपको लगता है कि आपके कल्ब में उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी मोहब्बत है। फिर आप रब के आगे झुकते हैं, आपका सीना छलक रहा होता है उस मोहब्बत से, फिर सर बसजूद होते हैं। फिर अल्लाह आप पे करम करता है और आपका कल्ब बड़ा कर देता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। फिर मोहब्बत बढ़ती है। फिर वो एक स्टेज पे आके छलकने लग जाता है, फिर वो मीना छलकते। तो वो जो एक कैफ़ियत है मुसलसल स्पिरिचुअली ऑगमेंटेड होने की, स्पिरिचुअली ग्रो करने की, जिसमें आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं और फिर वो मोहब्बत बढ़ती है और फिर कैपेसिटी बढ़ाते हैं, फिर मोहब्बत बढ़ती है। आप जज़्ब की मंज़िलें भी तय कर रहे होते हैं और सलूक की मंज़िलें भी तय कर रहे होते हैं। ये उस पे शेर है कि ज़ात का इम्तिहान है जज़्ब व सलूक, मीनाए इश्क से छलकता कल्ब। और है कि लफ्ज़ अब साथ ही नहीं देते। लफ्ज़ अब साथ ही नहीं देते, आ गया हूँ लिए हुमकता कल्ब। एक मकाम होता है जिसमें फिर आप कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहब्बत मैं अपने कल्ब में लिए हुए हूँ ना, अब मेरी डिक्शनरी में लफ्ज़ ख़त्म हो गए। अब मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जो आपसे अक़ीदत के इज़हार के लिए, आपसे मोहब्बत के इज़हार के लिए मैं पेश कर सकूँ, जो शायान शान हो आपके, जो आपके शायान शान में पेश कर सकूँ। और फिर आप कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मेरा कल्ब देख लीजिए, मैं बस ये एक हुमकता हुआ कल्ब, जैसे एक बच्चा हुमक रहा होता है, उसी तरीके से कल्ब आपकी मोहब्बत में हुमक रहा है। मैं ये हुमकता हुआ कल्ब लेकर आपके पास आ गया हूँ, अब मेरे पास दिखाने के लिए ये कल्ब ही है, मेरी ज़ुबान में लफ्ज़ नहीं है। ये एक ख़ामोश मोहब्बत होती है, एक मकाम होता है जिसमें आपके लफ्ज़ बेमानी हो जाते हैं, आप लफ्ज़ों से बात नहीं करते, फिर आपका कल्ब हम कलाम होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी मोहब्बत से। और है कि जब से समझी है सुन्नत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से समझी है सुन्नत आका, नफ़रतों में नहीं दहकता कल्ब। मैंने भी ज़िंदगी में एक वक़्त गुज़ारा है जिसके अंदर जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की, जिन्होंने नुकसान पहुँचाए, जिन्होंने तकलीफ़ दी, उनके साथ दिल में नफ़रत पैदा होती थी। लेकिन फिर जब प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझा, देखा कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं और उनका क्या अमल रहा उन लोगों के साथ जिन्होंने उन्हें तकलीफ़ दी, जिनकी वज़ह से उन्हें रंज पहुँचा, जिनकी वज़ह से उनको अज़ियतें झेलनी पड़ी। तो फिर आप अपने गिरेबान में झाँकते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितने छोटे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बुलंद थे। और जिन्होंने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, वो ज़्यादतियाँ कितनी छोटी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी बड़ी-बड़ी ज़्यादतियाँ हुई थी। और फिर आपको अपने आप से शर्म आती है कि मैं इतना छोटा होते हुए इतनी छोटी-सी ज़्यादती को माफ़ नहीं कर सकता, जबकि वो इतने बड़े होते हुए इतनी बड़ी-बड़ी ज़्यादतियों को माफ़ कर देते थे। तो फिर सुन्नत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के बाद नफ़रतें नहीं आपके कल्ब में रहती। जब से समझी है सुन्नत आका, नफ़रतों में नहीं दहकता कल्ब। और है कि हौज़ कौसर से 2 कदम पीछे, हौज़ कौसर से 2 कदम पीछे, खौफ़-ओ उम्मीद से धड़कता कल्ब। ये तो एक ऐसी कैफ़ियत है जो मेरे ऊपर सालों से तारी है, बार-बार मेरे ऊपर तारी हो जाती है कि जब हौज़ कौसर से 2 कदम की दूरी होगी, उस टाइम क्या हालत होगी। एक तरफ ये उम्मीद होगी कि बस अब 2 कदम की बात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब होगा। और एक तरफ ये खौफ होगा कि ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको रोक दिया जाएगा। कहा जाएगा कि आप आगे नहीं जा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के बारे में कहेंगे कि ये तो मेरे असहाब हैं, उनसे कहा जाएगा आपको नहीं, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या किया। तो जब अपनी ज़िंदगी के अमाल पे इंसान निगाह डालता है और देखता है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, तो फिर एक शर्म भी आती है कि मैं अपनी ज़ात को लेके, अपने गुनाहों को लेकर
اپنی ناپاکی کو لے کر کیسے ایسی عظیم ہستی کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں؟ تو وہ جو ایک خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس حوض کوثر سے 2 قدم دور ہوں اور یہاں پر میرا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ حوض کوثر سے 2 قدم پیچھے، خوف و امید سے دھڑکتا قلب، اور مکتا ہے کہ دکھ رہا ہے عماد اب واضح، دکھ رہا ہے عماد اب واضح، عشق کے بام سے جھلکتا قلب۔ جیسے بام سے آپ کو چاند نظر آتا ہے چودھویں کا واضح طور پر، اسی طریقے سے عشق کے بام سے جھلکتا ہوا قلب بھی مجھے واضح اب نظر آ رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں، میرے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ تو پھر آپ کو واضح نظر آنے لگ جاتا ہے کہ آپ ان سے کیسے کنیکٹڈ ہیں، جس طرح آپ کو واضح نظر آنے لگ جاتا ہے کہ چاند بام پہ چھلک رہا ہے، دکھ رہا ہے مات اب واضح، عشق کے بام سے جھلکتا قلب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔